Okay, so actually today is our fourth class of ICATS। एक हमारी ICATS की क्लास स्कूल में हुई थी, उसके बाद दो हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस हो चुकी हैं ICATS के हवाले से। Today is our fourth ICATS class। Our first topic is square and square root। पहले हम बात करते हैं कि स्क्वायर क्या है। स्क्वायर बेसिकली किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल, if I take a number like 2, let's start from 1, 1 का square, so 1 square is 1 multiplied by 1 2 times and I'll get 1, 1 1 0 is 1. 2, what is the square of 2? Square of 2 is 2 multiplied by 2 and that will be equal to 4. Similarly 3, 3 square is actually 3 into 3 is equals to 9. Similarly 4 square is 4 into 4 is equals to 16. Then 5 square is actually 5 into 5 is equals to 25. Means we have to multiply the number 2 times. So this is from 1 to 5. Let's go it further. Now I'll be asking you guys now. From 6 to 12. We will be doing till 6 to 12. So 6 square is what? 6 square is 6 into 6 is, I want Conan to answer. 6 6 that is? Conan, can you hear me? No? Conan, can you hear me? Irsam, can you hear me? Conan or Irsam, any one of you? Okay, Conan, अच्छा, Irsam मुझे बताएं. Okay, लिख भी the answer. So 6 6 that is what? 6 6 that is 36. What is the square of 7? 7 square is what? Conan, please don't write that way. Okay, good Rehan, keep it up. 7 square is 49 because 7 sevens are is 49. I want someone else to answer. I want Muzammil to answer now. What is the square of 8? 8 square is what? 8 square is what? Only Muzammil, no one else. 8 multiplied by 8 is what? 8 8s are is 64. Rehan, please don't answer that way. I was asking Muzammil, by the way. So Muzammil, it's 64, right? Now, 9 square. I want Banin to answer. Banin, are you there with me? You can write on the screen. No. Afnan has written it up, 81, but I want answer from Banin. Banin, you can type the answer or you can just write on the screen. I'm erasing it up for you. Basically, 9 nines are is 81. Then comes 10 square. I want Ahmed to answer now. Ahmed, 10 square is what? Good, Irsam. 10 multiplied by 10 is what? It's 100. Good, Hunain, but I want Ahmed to answer. Ahmed, where are you? Ahmed, where are you? It's actually 100. Okay, it's 100. Now it's done. 11 square batao Ahmed quickly. Square of 11 is what? Square of 11 is what? Ahmed quickly. Okay, Rehan, good. Please wait for your turn. Don't answer that way. Ahmed, 11 का square कितना होता है? 11 into 11 is what? It's 121. Okay. So 121. Okay, now I want
I want Hassan Mushtaba to answer now. Hassan Mushtaba, 12 square is what? What is the square of 12? 12 square is what? 12 square is what? 12 into 12 is how much? It's 144. Okay, so this is how we find out the square. Square means multiplying a number two times. ठीक है, इस तरीके से हम बेतहाशा नंबर्स को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, लाइक 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर एंड सो ऑन. हमारे पास स्क्वायर नंबर्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे. Now let's talk about the thing what is square root. Square root क्या होता है? Please don't write on the screen now. I want to clear all of it. Yeah. So square root क्या है? Square root. When I was teaching in grade 7, I just told them one thing. Square root. Root बोलते हैं जड़ को. तो square का root मतलब हमें पता लगाना है ये कौन सा नंबर है. What number is that? By multiplying, I got so and so number. For example, अगर मेरे पास square आ रहा है, let's suppose 4, तो वो कौन सा नंबर था जिसको मैंने 2 times multiply किया and I got the number 4. I'm going to allow you guys to unmute yourselves. You can open it up. So you can stop writing on the screen. You can speak up. Good. तो वो कौन सा नंबर जिसको मैं 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया आंसर 4 आया. बिल्कुल. 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आंसर 4 आएगा. गुड. If I ask you guys, okay, you can mute your mics as well. कौन सा वो नंबर है? जी कौन है ये? कौन? Please mute your mic. If you guys will not follow the rule, be very serious. Now, कौन सा वो नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 दफ़ा मेरे पास 9 आएगा? What number is that? I want Irsam to answer. 3. Good. 3. Very nice. What number was that? If I multiply it by 2 times, I will get 16. जड़ निकाले. 16 की जड़ क्या है? 16 किससे बना है? किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से बना है? 4. Very good. Very good. Similarly, let's talk about 25. And I want someone else to answer. I want Ehsan Salman. Where is Ehsan Salman? किस नंबर को 2 times multiply किया and I got 25? Very good. 5. Now I want someone else to answer. I want Rehan. Rehan, are you there? Rehan, किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे? किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 times and I'll get 36? Good. Yes, let's come on to Hassan Mushtaba. Can you hear me? किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 times I'll get 49? 7. Similarly, किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 times I'll get 64? I want someone else to answer now. Baneen, are you there? 8. Good. Yes, Afnan, are you there? किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 times that I'll get 81? Afnan? Good. So I hope it's clear to you कि basically स्क्वायर रूट ऑपोजिट होता है स्क्वायर निकालने का. स्क्वायर में हम लोग एक नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट में हम वो नंबर के बारे में पता लगाते हैं कि वो कौन सा नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स में फला फला आंसर आएगा. ठीक है. सो आप सबका होमवर्क ये है कि आप लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट की टेबल बनाएंगे. ठीक है. स्क्वायर और स्क्वायर रूट का टेबल बनाएंगे. रेहान, काइंडली प्लीज बिहेव योरसेल्फ. द क्लास हैज़ बीन रिकॉर्डेड. नाउ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है. नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में. स्टार्टिंग हम बहुत बेसिक से लेंगे. पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. सो एल्जेब्रिक expression, we know that algebra is a study of unknown variable. यानी ये वो स्टडी है जिसमें हम किसी भी ऐसी वैल्यू को फाइंड करते हैं जो हमें पता नहीं होती. ठीक है. सो द बेसिक यूनिट ऑफ algebra, I don't want anyone to write on the screen now. सो बेसिकली algebra में algebraic expression कुछ चीज़ों से मिलके बनता है.
बेसिक यूनिट ऑफ एल्जेब्रा इज एक्चुअली द अननोन वेरिएबल, यानी अननोन वेरिएबल वो नंबर जो हमें पता नहीं होता है और हम मैथ्स में उसको लिखने के लिए x, y, z यानी a से लेके z तक हम मुख्तलिफ लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट द अननोन वेरिएबल। ठीक है। अच्छा, कभी कभी अननोन वेरिएबल के साथ कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 3 एंड x। तो ये जो 3 होता है वी कॉल इट अ कोएफिशिएंट, 3 is the coefficient and x is the variable, x is the variable। कोएफिशिएंट नंबर को बोलते हैं और वेरिएबल उस वैल्यू को कहा जाता है जो हमें पता नहीं होती। जब कोएफिशिएंट और वेरिएबल एक साथ लिखते हैं वी गेट अ टर्म, हमारे पास एक टर्म बनता है। वो नंबर जो किसी भी वेरिएबल यानी अननोन नंबर के साथ लिखा हुआ जाए। ठीक है, मैं भी आपको इसे एग्जांपल समझाती हूँ। ठीक है, जब कोएफिशिएंट और वेरिएबल एक साथ लिखते हैं हमारे पास एक टर्म बनता है। सही समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब मैं आपको समझाती हूँ कोएफिशिएंट का मतलब क्या है। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, 1 एप्पल, 2 एप्पल, 3 एप्पल, 4 एप्पल, 5 एप्पल। 5 एप्पल्स मेरे पास हैं। एप्पल्स के लिए मैं लेटर ए का इस्तेमाल करूंगी, ए, सॉरी एप्पल के लिए मैं लेटर ए का इस्तेमाल करूंगी, लेटर ए, लेटर ए, लेटर ए, लेटर ए, लेटर ए। ठीक है, अब मुझे पता है कि ये एप्पल्स के बारे में, राइट? लेकिन यहाँ पे कितने एप्पल्स हैं? एप्पल नंबर 1, एप्पल नंबर 2, एप्पल नंबर 3, एप्पल नंबर 4, एप्पल नंबर 5। सो बेसिकली मेरे पास 5 एप्पल्स हैं और मैं एप्पल्स के लिए क्या यूज़ कर रही हूँ? लेटर ए यूज़ कर रही हूँ। सो बेसिकली 5a। तो हम बेसिकली अलजेब्रा में क्या करते हैं, अगर मैंने लिखा हुआ है 3x, ये मैंने क्यों पूरा एक्सप्लेन किया। अगर अलजेब्रा में लिखा हुआ आ रहा है आपके पास लेट्स सपोज 3x, तो इसका मतलब है कि x 3 दफ़ा है, x प्लस एक्स प्लस एक्स। समझ में आया आपको नैन? आपको एनी प्रॉब्लम? ठीक है, अगर नंबर लिखा हुआ है 6y, तो इसका मतलब है कि y को हमने ना 6 दफ़ा लिखा है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ भाई क्लास में 5 बॉयज़ हैं, तो मैं थोड़ी बोलूँगी 1 बॉय 1 बॉय 1 बॉय, नो, मैं टोटल बॉयज़ कैलकुलेट करूँगी और मैं अपना आंसर लिख दूँगी। ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए हम कोएफिशिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक यूनिट जो होता है ना, इट इज़ द टर्म। टर्म इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ algebra, so it starts from the term। अब टर्म, बहुत सारे टर्म को अगर मैं ज्वाइन कर दूं, मिला दूं विथ ऑपरेशंस लाइक प्लस माइनस। मैंने जो है ग्रेशियस के बच्चों को समझाने के लिए इनको एग्जांपल दिया था कि अक्सर जब आप देखते हैं कि स्कूल में प्रोग्राम्स होते हैं लाइक चिल्ड्रंस डे, तो मिस सफ़िया क्या करती हैं, इस तरह का एक रिबन बनाती है। ठीक है, अब वो क्या करती हैं, इन तमाम ट्रायंगल शेप्स को जॉइन करती हैं रिबन्स के साथ, रिबन्स, यू नो रिबन्स, रिबन्स के साथ जॉइन करती हैं। तो बेसिकली ये टर्म्स हैं, ये जो मैंने बनाया ना, ये जो ग्रीन कलर के जो मैंने ट्रायंगल्स, सॉरी जो मैं ये कलर कर रही हूँ ग्रीन, जहाँ पे मैं ग्रीन कलर कर रही हूँ ना, ये एक्चुअली आपके रिबन्स हैं, सॉरी ये आपकी जो है ना टर्म्स है, सॉरी। सो दिस इज योर, दिस इज योर एक्चुअली ये आपके टर्म्स हैं, ये भी आपका टर्म है। अब ये जो प्लस माइनस है ना, ये बीच में, ये प्लस माइनस आपके रिबन्स का काम करते हैं। दिस इज एक्चुअली योर रिबन्स। ठीक है, जब मैं बहुत सारे टर्म्स को, मुख्तलिफ टर्म्स को प्लस माइनस के साथ ज्वाइन करूंगी,
तो मेरे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनते हैं। मिसाल के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जांपल 2x प्लस 3y प्लस 2z। तो अगर आप देखें हमारे पास यहाँ पर तीन तरह के टर्म्स हैं। पहला हमारे पास टर्म 2x, सेकेंड टर्म 3y और थर्ड टर्म 2z। अब इन टर्म्स को ज्वाइन करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया है? हमने यूज़ किया रिबन्स का। एक प्लस है और एक प्लस है। प्लस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि जब बहुत सारे टर्म्स एक साथ मिलाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस, वी कॉल इट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। और अगर मैं बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को मिला दूँ इक्वल टू साइन के साथ, फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे हमारे पास लेट्स सपोज 2x प्लस 3 है, हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। और दूसरा हमारे पास लेट्स सपोज है 4x प्लस 5। अगर मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रही हूँ इक्वल टू साइन के साथ, तो हमारे पास बनता है एक एल्जेब्रिक, हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन को मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो ये कुछ बैकग्राउंड था अबाउट एल्जेब्रा। एल्जेब्रा स्टार्ट होता है विद टर्म्स, टर्म्स में कोएफिशिएंट यानी नंबर्स और अननोन लेटर्स लाइक एक्स वाई जेड आर योर वेरिएबल्स। ठीक है, जब बहुत सारे टर्म्स, मुख्तलिफ टर्म्स को मैं जब ज्वाइन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ प्लस एंड माइनस, आई गेट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और जब मैं बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब मैं ज्वाइन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन इक्वल टू साइन, आई गेट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये कुछ बैकग्राउंड था अबाउट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप वैसे सबको ऑलमोस्ट प्लस माइनस आता होगा, लेकिन मैं आप सबके सामने एक स्मॉल स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। So on this screen there are two types of question. One is about factorizing and the other is about expanding. So factorize का मतलब क्या होता है? Factorize का मतलब होता है कि कुछ बिखरा हुआ है, हमें इसको समेटना है, एक साथ इकट्ठा करना है। ठीक है, आपके सामने वाले मैं फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाऊंगी 25x माइनस 5। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। 25x माइनस 5 जो है अगर हम देखें यहाँ पे, so 25 पहले हम देखते हैं अपने नंबर्स की तरफ। लेट मी जूम इन अ बिट हियर। We'll first focus on the number. So we have two numbers here 25 and 5. अगर हम देखें इन दोनों नंबर्स के दरमियान एक कनेक्शन है, एक राब्ता है, क्योंकि 25 और 5 दोनों आते हैं सेम टेबल में, इन टेबल ऑफ 5। सो 5 विल बी द कॉमन फैक्टर आउटसाइड। ठीक है, विल ओपन द ब्रैकेट। अब मैंने यहाँ पे लेटर्स को इसलिए नहीं लिखा, पहले हम नंबर्स को देखते हैं फिर हम लेटर्स को देखते हैं। 5 वॉज द कॉमन लेटर, यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे था इसलिए मैंने लेटर कॉमन नहीं लिया। अब 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? आई गेट 25, 5 5 इज 25, x साथ में ही आ जाएगा। माइनस 5 से क्या मल्टीप्लाई करेंगे? यू विल गेट 5 हियर, you will multiply with 1. So 5 1 is 5. This is the way we factorize our algebraic expression. ठीक है, बाकी दो सवाल आप लोग का होमवर्क आप लोग खुद करते रहेंगे, इसकी पिक्चर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, एक्सपैंडिंग। एक्सपैंडिंग का मतलब होता है फैलाना, यू आर स्प्रेडिंग। जब आप कुछ फैलाते हैं, जब आप कुछ स्प्रेड करते हैं, उसे हम एक्सपैंडिंग कहते हैं। ठीक है, ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। फैक्टराइज का मतलब होता है समेटना, इकट्ठा करना। जब भी हम फैक्टराइज करते हैं ना, हम फैक्टराइज में पहले हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर हम पहले नंबर्स में चेक करते हैं। यहाँ हमारे पास टू नंबर 25 और 5। मुझे बताओ कौन है 25 और 5 में कोई कनेक्शन है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन 25 एंड 5? व्हाट इज द कनेक्शन? व्हाट इज द कनेक्शन? तो मैंने 5 कॉमन निकाल दिया बाहर। वेरी गुड, 5 मैंने कॉमन निकाल दिया। अब आओ लेटर चेक करो, क्या दोनों में कोई लेटर है? यहाँ पर x है, तो क्या यहाँ पे x है? तो क्या 5 के साथ कोई x लगा हुआ है? तो इसलिए मैं x को कॉमन नहीं लूंगी। मतलब जो चीज़ कॉमन ही नहीं है, जो चीज़ हर जगह है ही नहीं, तो मैं उसको कॉमन नहीं ले सकती। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना ब्रैकेट ओपन करेंगे। मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मुझे बताओ कौन है कि 5 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मिल गया 25। सो 5 ऐसे ही आ गया।
इसके साथ x था इसलिए मैंने नीचे x लगा लिया. माइनस विल बी कमिंग डाउन हियर एज इट इज. अब मुझे बताओ 5 से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ, आई गेट 5. ओके, so then you will get the answer 1. So ये सिर्फ कॉन्वेंट के लिए नहीं था, ये सिर्फ सब उनके लिए जिनको डाउट्स थे. आई होप सबको फैक्टराइजिंग क्लियर हो गया होगा. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? चलिए जल्दी से हम बात करते हैं टूवर्ड्स दी एक्सपैंडिंग. एक्सपैंडिंग के हवाले से बात करते हैं ना. अब एक्सपैंडिंग का मतलब होता है फैलाना. यू हैव टू स्प्रेड समथिंग. ठीक है, प्लीज ट्राई टू कीप योर माइक्स क्लोज सो दैट वी कैन actually work properly here. So expand the following. And expand the following. We have the first question: 2 bracket x minus 4 bracket close plus 3 bracket x plus 5. Expand में होता है, please अपने mic से close रखें. I don't know what's happening. Okay, now so here when we open the bracket, इस 2 को आप x को भी दोगे और इस 2 को आप 4 को भी दोगे. इस 3 को आप x को भी दोगे और इस 3 को आप 5 को भी दोगे. So if you see here, 2 into x is 2x. Minus will be coming down here as it is. Now 2 4s are is 8. फिर plus 3 into x is 3 into x is, so 3 into x is plus 3x. Now 3 5s are is plus 15. Now हम लाइक टर्म्स को एक साइड पे लेकर आएंगे, यानी जो एक एक फैमिली के, x एक फैमिली है और नंबर्स दूसरी फैमिली के. सो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 15. अगर हम प्लस करें 2x प्लस 3x इज 5x. मैं ऊपर लिख के दिखा रही हूँ. सो 5x, लेट मी जस्ट इरेज इट ऑफ. 5x. Now minus 8 plus 15 is what? Minus 8 plus 15. Who can tell me the answer? Who can tell me the answer? Is anybody listening or not? Who can? Okay, so minus 8 plus 15. Are you sure? Yes, you're right, Ahmed. It's 7. 7 आंसर आएगा, लेकिन ये बताओ कि इसके साथ प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा. We have minus 8 and plus 15. Which number is big? Minus 8 or 15? Which number is big? Which number is big? 8 or 15? Just tell me this. 15. और 15 का साइन क्या है? प्लस. तो आंसर के साथ साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है. ठीक है, दिस इज द हाउ वी एक्सपैंड. इस तरीके से हम एक्सपैंड करते हैं. अब हम आते हैं टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट. व्हाट आर लीनियर इक्वेशंस? लीनियर इक्वेशंस क्या होती है? लीनियर इक्वेशंस बेसिकली वो इक्वेशंस होती हैं जिनमें x की पावर 1 हो. मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखें, x प्लस 3 इज इक्वल टू 10. x प्लस 5 इज इक्वल टू 15. अगर आप देखें यहाँ पे x की पावर क्या है? द पावर ऑफ x इज 1. पावर ऑफ x इज 1. लेकिन अगर मैं आपके सामने ऐसी इक्वेशन लिखूं, लेट्स सपोज x square plus 3 is equals to let's suppose 20. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे x की पावर 2 है. तो वो इक्वेशंस जिनमें x की पावर, रेहान प्लीज डोंट अटेंड माई क्लास द नेक्स्ट टाइम इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइक. वो इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो उसे हम कहते हैं, we call it linear equation.
उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। और वो इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो, लाइक 2x प्लस 5x प्लस 6, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, दो तरह की मैंने इक्वेशंस बता दी हैं। वो इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो उसे हम लीनियर कहते हैं, और वो इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। आपका टास्क ये है कि आप लोग जो है कोई भी 3 एग्जांपल्स लिख कर लाएंगे लीनियर इक्वेशन की और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। याद रहे कि ये इक्वेशंस रिपीट नहीं होनी चाहिए, इट हैज़ टू बी अ डिफरेंट इक्वेशन। ठीक है, सो आज की क्लास में मैंने आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर समझाया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाया, किस तरह से फैक्टराइज करेंगे, किस तरह से एक्सपैंड करेंगे, और बहुत सारे काम है जो हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको थ्री एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने आपको जो है लीनियर इक्वेशंस के बारे में समझाया कि वो इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, और वो इक्वेशन जिसमें x की पावर 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। दैट्स इट विद द क्लास, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।